Morning students, welcome to Maths Cafe. Students, today we will discuss the last topic of chapter 13, surface area and volumes. And the last topic is volume of sphere and volume of hemisphere. And the formula for volume of sphere is 4 by 3 pi r cube and volume of hemisphere is 2 by 3 pi r cube. So let us start with exercise 13.8 with question number 1. Question number 1 is find the volume of a sphere whose radius is first part 7 centimeter and second part is 0.63 meter. So I will solve here only first part. Second part is for the homework. Question number 1, first part is it is given that the radius is 7 centimeter and we have to find the volume of sphere. And we know that the volume of sphere is 4 by 3 pi r cube. Now substitute the values 4 by 3. Since the value of pi is not given, so we take here 22 by 7 and radius is 7 into 7 into 7 because cube is here. So this 7 is cancelled. Now the left is 4 into 22 into 7 into 7 and this comes out to be 4312 divided by 3 and this is after division 1437.33 centimeter cube. This is the answer of first part. Second part आप अपने आप try करेंगे, same है बिल्कुल हमारा. Now question number second is find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter 28 centimeter. जब हम एक स्फेरिकल बॉल को हम पानी में डालेंगे, किसी भी चीज़ में अगर वाटर है, कोई भी लिक्विड है और अगर उसके अंदर हम एक बॉल को डाल रहे हैं तो उसमें कुछ अमाउंट क्या होगा, वाटर का ऊपर आ जाएगा, ठीक है. या फिर अगर वो ऑलरेडी पहले से फुल होगा वो वाटर उसके अंदर, सपोज़ कि सिलेंडर में वाटर है और अगर हम उसके अंदर बॉल डाल रहे हैं तो वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा. और अगर वो ऑलरेडी जो है वो फुल होगा पहले से, तो जब हम उसके अंदर स्फेरिकल बॉल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पानी बाहर निकल जाएगा. और वो पानी बाहर कितना निकलेगा, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट बॉल. सेम कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग हेयर. हम यहाँ पे क्या करें, एक स्फेरिकल बॉल जब पुट कर रहे हैं तो कितना वाटर डिस्प्लेस होगा वो हमें निकालना है. और वो वाटर कितना डिस्प्लेस होगा, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल. सो इन दिस क्वेश्चन जो गिवन है हमारे पास फर्स्ट पार्ट के अंदर, डायमीटर ऑफ द बॉल इज गिवन. Diameter of spherical ball is 28 centimeter. So therefore radius, अब radius हमारे पास half of diameter होता है, so this is equal to 14 centimeter. Now we have to find the amount of water displaced. Amount of water displaced is equal to volume of spherical ball. और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 by 3 पाई आर क्यूब, जो हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया है. नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. 4 by 3 पाई इज 22 by 7 एंड रेडियस क्यूब, रेडियस इज 14 into 14 into 14. So 7 2s 14. नाउ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में जो हमारे पास आएगा दैट इज 34496 डिवाइडेड बाई 3. And after division this comes out to be 11498.66 centimeter cube. This is the answer of first part of question number 2. Now second part you try yourself. Same है हमारे पास बिल्कुल second part, तो आप अपने आप try करेंगे. Okay. Now come to question number 3. Question number 3. Third question is the diameter of metallic ball is 4.2 centimeter. Diameter हमें given है तो रेडियस यहाँ से आ जाएगा. What is the mass of the ball? मास हमें निकालना है बॉल का. If the density of the metal is 8.9 gram per centimeter cube,
सेम टाइप का क्वेश्चन हमने एक बार पहले भी किया है, जहाँ पे हम उसका मास निकाल रहे थे, और मास के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले उसका वॉल्यूम निकालेंगे. सो व्हाट इज गिवन हियर, it is given that the diameter of metallic ball is 4.2 centimeter. So therefore जो radius हमारे पास आएगा, that is half of the diameter, means 2.1 centimeter. Okay, now we have to find its mass. तो mass के लिए पहले हम volume निकालें. हम इसका volume of metallic ball is 4 by 3 pi r cube. Now substitute all the values. 4 by 3, 22 by 7. Radius is 2.1 into 2.1 into 2.1. So now simplify this. अब यहाँ पे simplify में देखिए, 3 into 0.7 is 2.1. Now 7 into 0.1 is 0.7. Now multiply 4 into 22 into 0.1, 2.1 and 2.1. And after multiplication, this comes out to be 38.808 centimeter cube. Now it is given that, देखिए आपके पास क्वेश्चन में गिवन था कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, दैट इज 8.9 ग्राम. इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन. तो अब हमारे पास हमें कितने का मास निकालना है, 38.808. जब ज़्यादा के लिए हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. सो 38.808 मल्टीप्लाइड विद 8.9 एंड दिस कम्स आउट टू बी 345.39 grams. Okay, so this is question number 3. ये हो गया हमारा. Now the next is question number 4. Fourth question is, the diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of earth. मून का जो डायमीटर है वो अप्रॉक्सीमेटली अर्थ के डायमीटर का 1/4 है. इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने 13.4 जो हमारी सरफेस एरिया वाली एक्सरसाइज थी वहाँ पर किया था. What fraction of the volume of earth is the volume of moon? हमें फ्रैक्शन किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू द वॉल्यूम ऑफ मून. मीन्स हम वॉल्यूम ऑफ अर्थ को न्यूमरेटर में रखेंगे और मून के वॉल्यूम को डिनोमिनेटर में. सो व्हाट इज गिवन हियर इज, सबसे पहले कंसिडर कर लें हम, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज x यूनिट. अगर अर्थ का डायमीटर x यूनिट हमने कंसिडर कर लिया तो अर्थ का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ, लेट इट बी डिनोटेड बाय आर ई. तो वो क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ. और अगर अर्थ का रेडियस इतना है तो अब रेडियस ऑफ मून हमारे पास आर एम, वो हमारे पास कितना हो जाएगा. अगर पहले चलो हम इसको एक बार डायमीटर से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं इंस्टेड कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो. जो उसने गिवन दिया था हम वैसे लिख देते हैं. डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ. उसने ये कहा है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ क्या है, x. सो दिस इज 1/4 इंटू x यूनिट. ये आ गया हमारे पास. अब रेडियस ऑफ मून जो हमारे पास आएगा, लेट इट बी डिनोटेड बाय आर एम. अब ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ. सो दिस इज x/8 यूनिट. हमारे पास दोनों का रेडियस आ गया. नाउ वी हैव व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट हेयर कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू वॉल्यूम ऑफ मून, ये हमें यहाँ पे निकालना है. फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू वॉल्यूम ऑफ मून हमें निकालना है. अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर ई क्यूब.
and that of moon is 4/3 pi r m cube. Okay, 4/3 cancel, pi cancel. Now what is left? रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब है और मून का क्यूब है. क्या इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते? आर ई अपॉन आर एम होल क्यूब. हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पर. सो दिस इज, अब रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास क्या है? x/2 और मून का हमारे पास क्या है? x/8. दिस इज होल क्यूब. नाउ दिस कैन बी रिटन एज x/2 और जब मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करते हैं तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट का क्या ले लेते हैं? रेसिप्रोकल 8/x. Now this x is cancelled. 2 4s. So this is 4/1 cube, or it can be written as 64/1. और अगर हम रेशियो में इसको रिप्रेजेंट करते हैं then it can be written as 64/1. This is the answer of this question. Now come to next question, that is question number 5. Question number 5 is the diameter, how many liters of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 centimeter hold? हमें बताना है कि हेमिस्फेरिकल बाउल में कितना लीटर ऑफ मिल्क आ सकता है जिसका डायमीटर हमें गिवन है. अब हेमिस्फेयर का केस है और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमारे पास क्या होता है? 2/3 pi r cube. सो फर्स्ट राइट द गिवन थिंग्स. डायमीटर ऑफ hemispherical bowl, that is given 10.5 centimeter. तो रेडियस हमारे पास हो जाएगा यहाँ से half of the diameter, it means 10.5 divided by 2 centimeter. Now we have to find the volume. तो वॉल्यूम जो हमारे पास हेमिस्फेरिकल बाउल का आएगा, that is volume of hemispherical bowl is 2/3 pi r cube. Now substitute the values. 2/3, pi is 22/7 and radius is 10.5/2, 10.5/2 and 10.5/2. Okay, ठीक है. नाउ सिंप्लीफाई दिस. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन रिजल्ट इज आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, अब उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ लीटर. और लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने रिलेशन किया था कि रिलेशन हमारे पास होता था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू, जब हम उसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास हम उसको लिखते थे 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 लीटर. ओके, सो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1/1000 लीटर. तो हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर क्यूब को रिप्लेस कर देंगे. अब इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर क्यूब की क्या है? 303.1875 and this is equal to 1/1000 liter. This is the rough part. Okay, अब जब आप इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरो हैं, हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं, तो ये डेसिमल 3 डिजिट पहले आपका आ जाएगा. तो ये रिज़ल्ट जो हमारे पास बन जाएगा दैट इज़ 0.303. आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव योर आंसर ओनली अप टू 3 डिजिट्स. 0.303 लीटर. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? A hemispherical tank is made up of iron sheet.
एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो कि एक आयरन शीट से बना है और वो शीट की थिकनेस हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर। इफ़ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। हमें वॉल्यूम निकालना है आयरन का कि जो उसमें यूज़ हुआ है। अब अगर हम इसको यहाँ पे इसकी फिगर को ड्रॉ करें देन इट इज़ लाइक कि ये हमारा एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है। दिस इज द हेमिस्फेरिकल बाउल, ओके। ये जो पार्ट है ये मैंने ड्रॉ किया है इसके थिकनेस को शो करने के लिए। ये थिकनेस हमें गिवन है, दिस थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। ये थिकनेस हमें गिवन है एंड इट इज़ गिवन दैट कि ये अंदर तक का जो रेडियस है, इनर रेडियस, यहाँ पर इनर रेडियस को मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। दिस इनर रेडियस इज़ 1 मीटर। तो हमारा आउटर रेडियस जब हम निकालेंगे तो आउटर रेडियस में हमारे पास इनर रेडियस और ये थिकनेस ऐड हो जाएगी। यहाँ पे मैंने इसको थिकनेस ही लिख दिया और आउटर रेडियस को कैपिटल R से डिनोट कर दिया। नाउ थिकनेस अब हमारी किस में है, 1 सेंटीमीटर। इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। रेडियस मीटर के टर्म्स में है, इट मीन्स कि मैं इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी डिवाइड इट बाय 100। सो दिस इज 0.01 मीटर, ओके। सो आउटर रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, 1 मीटर प्लस 0.01 एंड दिस कम्स आउट टू बी 1.01 मीटर। तो हमारा इनर रेडियस भी है, आउटर रेडियस भी है। मुझे सिर्फ इस आयरन का वॉल्यूम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले वॉल्यूम से अंदर वाला वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। अब आउटर वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब, क्योंकि बाहर का रेडियस हमने कैपिटल R, एंड इनर इज 2/3 पाई स्मॉल R क्यूब। 2/3 पाई इज कॉमन एंड कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल R क्यूब। नाउ सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज, 2/3 पाई इज 22/7 and this is 1.01 cube minus 1 cube, and this comes out to be 2/3 into 22/7 and the cube of 1.01 is 1.030301 minus 1. 2/3 into 22/7 into, after subtraction this comes out to be 0.030301 and after simplification this is 0.06348 meter cube. This is the volume of iron used in making the hemisphere. So with this question आज हम इसको यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। इन नेक्स्ट video we will discuss the remaining questions of this exercise. Thank you and have a nice day.